Okay. I request to all the district officials and state officials who are all attending this webinar. Please kindly make sure the my mic is muted or not. So before inviting the our Joint Director Lieutenant Colonel Dinesh Chandra, I would like to brief few words about his career. So. Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasis is presently the Joint Director of National Institute of Disaster Management. He was commissioned into the Army Ordnance Corps in September 2000. Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasis is a supply chain management professional with over 19 years of experience in managing the entire government of supply chain grid. The officer has excelled academically with a master degree in management. Apart from logistic management courses with specialization in ammunition and other war-like stores. The officer has commanded an ordnance unit of prestigious strike corps of Indian Army and exposure on various command and staff duties in all type of operation and terrain. So I request to Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasis, sir, please kindly open this webinar. Yeah. Wait a minute. Yeah, am I audible, Balaji? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay. Thank you, Balaji, for giving a welcome address, and thank you everyone here who are sitting here from the state of Punjab, our own land with 5 rivers. So, on behalf of National Institute of Disaster Management, I welcome you all nominated participants from the state of Punjab who are sitting here today for this one-day virtual. Excuse me, one-day virtual orientation cum training program on excuse me on the IDRN for Punjab state disaster management professionals. As we all know that the resources management is the process of ensuring that appropriate amounts of stock, both men and equipment, are maintained. So to be able to meet the demand without delay, in our case, since we are dealing with disasters, and since disasters cannot be predicted, therefore we need to keep the resources reserved so that it is within the reach of the first responders at the site of disasters. Therefore, the foremost principles for we manage is to make resources available at the right time and the right place and the right quantities. I hope Balaji, who is the convener from the state, who is the person responsible from the state? Sir, Satyendra Singh Jalal, Superintendent, Punjab Civil Secretariat, Government of Punjab. Shri Satyendra Singh ji, आप English is comfortable or do I switch over to Hindi? सत्येंद्र जी हिंदी सर हिंदी ओके ठीक है आई चेंज माय टॉक इन हिंदी ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि दैट द रिसोर्स जो जितने भी रिसोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका सही टाइम पे सही जगह पे मिलना इमरजेंसी सिचुएशन में या डिजास्टर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें पता हो कि कौन सी जगह पे कौन सा सामान रखा हुआ है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो है ये टास्क मैनेजमेंट इस रिसोर्स नेटवर्क का जिसका नाम है IDRN इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NIDM को सन 2008 में दी गई थी। इसके तहत करीब 298 आइटम जिसके जो कि 36 भागों में बटे हुए हैं उनको हमने इस वेबसाइट में हमने डाला हुआ है। डिजास्टर के दौरान जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब स्टेट को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इस इन्वेंट्री डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क के में देखते हुए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सही समय सही टाइम पे इसका मिलना बहुत जरूरी है। ये लिस्ट जो है एक बहुत हाई लेवल कमेटी जो कि यहाँ नई दिल्ली में बैठी हुई थी, जो कमेटी यहाँ पे हमेशा काम करती रहती है, जो कमेटी हमें अगर आपको कोई भी नया आइटम अगर पंजाब स्टेट जैसे कि आपका 19वां स्टेट है जहाँ पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो काफ़ी हमारे पास आइटम्स की रिक्वायरमेंट आई है क्योंकि जैसे कि वो स्टेट है उड़ीसा जहाँ पे कि कोस्ट लाइन लगती है, केरला जहाँ पे कि फ्लड्स आते हैं, टोरेंशियल्स रेन बहुत ज़्यादा हैं, या तमिलनाडु जिसके अपने प्रॉब्लम्स या प्रॉन हैं जो डिजास्टर के उनको देखते मद्देनजर रखते हुए लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है दिल्ली में
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, जिसमें अपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और एमएचए विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द स्टेट, ये कमेटी का गठन किया गया है, जो कि हर आइटम को ध्यान से देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और फिर ही उसको लिस्ट आउट करते हैं उस आइटम को। ये पोर्टल जो है जो हम लोग बैठे हैं वो 2008 विंटेज का है, और अभी जिसमें हम अभी ट्रेनिंग करेंगे वो हमने एक नया पोर्टल बनाया जो कि अभी जून 2020 में हमने एनआईडीएम ने यहाँ पे इन हाउस डेवलप किया था, जिसमें कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो आज प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे हैं, श्री बालाजी और श्री धर्मेंद्र, जो कि दोनों आपको इस पे लाइव लेके जाएंगे और इस नेटवर्क को जो है लाइव आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। हम उद्देश्य इस वेबसाइट में और आज आपसे मिलने का एक ही है कि हम अपनी इन्वेंट्री को, डाटाबेस को इसमें एंटर करें, और ताकि डिजास्टर के दौरान हमें इधर उधर ना देखना पड़े और हमें पता हो कि हमारे स्टेट में क्या अवेलेबल है और हमारे नियरेस्ट लोकेशन पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। आपको पता है कि डिजास्टर या जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है ये बता के नहीं आती, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भी कहाँ पे क्या होगा, तो हमें हर स्टेट को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर मेरे स्टेट में नहीं है तो पड़ोस के स्टेट्स में जो है इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इसके लिए इस डेटाबेस में हमेशा अपडेट रखना है, सारा डाटा हमें एंटर है, और जितने भी हम यहाँ पे आज बैठे हैं हमें आज यहाँ से इस पूरे आईडीआरएन पोर्टल को सीख के निकलना है, समझना है, जब भी हमें जाना है। धर्मेंद्र और बालाजी पूरी आपको ट्रेनिंग देंगे इस पे, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जिसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कृपया आप पूछिए। इसके अलावा जो भी आपके सजेशंस हैं या कुछ भी आइडियाज़ हैं आपके, जो लगता है कि इस वेबसाइट को हमें अच्छा और बनाना चाहिए, वो आइडिया आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें ताकि हम इस वेबसाइट को और अच्छे से अच्छा बना सकें। विद दिस मैं आज का प्रोग्राम जो है वो शुरू करता हूँ, जिसके तहत मैं एक छोटी सी आपको पहले आईडीआरएन पोर्टल है क्या वो प्रेजेंटेशन दूंगा। उसके बाद मैं बालाजी को और धर्मेंद्र को बोलूंगा कि वो आपको लाइव लेके जाएं, ताकि हम लोग जो है आईडीआरएन पोर्टल के बारे में समझ सकें। बालाजी, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, it's loading, sir. 1 second. Okay. Full screen. Can you please do full screen, sir? Yes, I'm doing. जैसा कि हम लोग आज बैठे हैं सारे यहाँ पे मिलके, एक पंजाब स्टेट के जितने भी हम नुमाइंदे हैं आज बैठे हैं आईडीआरएन, जो कि इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क है, इसको समझने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसका चलाया जा रहा है, इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो इसका देखरेख है, जो भी इसका डाटा एंट्री है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल की, या जो भी आप आज बैठे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस साइट को मेंटेन करना, अपने स्टेट का जो भी डेटाबेस है वो इसमें एंटर करना। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया का जो कंडीशन है जियो क्लाइमेटिक बहुत ही वास्ट कंडीशन है, हमारा जो देश है वो वेरियस जियो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, हैजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामी, हर तरह के डिजास्टर से प्रोन है। और अब हम जब देख रहे हैं कि प्रेजेंट पैंडेमिक में जो कि कोरोना कोविड-19 वायरस जो आया है, इसने पूरे देश को या नहीं पूरी दुनिया को इससे इफेक्ट किया है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए भारतीय सरकार ने सोचा कि जो इन्वेंट्री है जो कि रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, ये एक जगह पे हमें पता हो कि कहाँ पे अवेलेबल है, और विदाउट डिले जो है इस इन्वेंट्री को हमें देखना चाहिए। इसलिए एक मतलब एक नीड हमें फील हुई कि हमें इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पे, और डिजास्टर मैनेजर जो हैं, जो कि आप जो आज बैठे हैं मेरे सामने, ये हम जो हैं इसको हम देखें। इसमें जो है आईडीआरएन जो है एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन अवेलेबल है ये प्लेटफॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनआईडीएम की वेबसाइट के थ्रू आप इस पे आते हैं। आपको पता है कि इस पे कैसे आना है। हाउएवर अभी हम जब डैशबोर्ड पे जाएंगे डायरेक्टली ऑनलाइन, तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे आपने आगे ऑपरेट करना है। आपको पता है, फिर भी हम लोग जो है बेसिक से जो है आपको एडवांस स्टेज पे आज लेके जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि आप जो है डाटा को एंटर करें। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएनडीपी के डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जो है हमने इसका गठन किया आईडीआरएन पोर्टल का।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एनआईडीएम को 2008 में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो जब से एनआईडीएम के पास इसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी फोकस जैसा कि स्लाइड में दिया गया है, एक डिसीजन मेकर्स, जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं ग्राउंड पे ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, उनको इजी एक्सेस मिले इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स का। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, जिसमें कि आईडीआरएन का डाटा जो है आप जो हमने डाटाबेस है वो एनआईसी पोर्टल पे डाला हुआ है। ये कि टोटल सिक्योर्ड नेटवर्क है। इसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया है, रोल ऑफ एनआईडीएम क्या है, रोल ऑफ स्टेट डिजास्टर, मेजर रोल जो है वो एक लाइन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का है, मेन रोल इसमें जो है। तो हम जो है रोल आपका क्या है और किस लेवल पे आपका इसमें एक संपर्क है इस पूरे एनआईसी पोर्टल पे जो कि एनआईडीएम के पास है, वो हम आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। डाटा प्रोसेस कलेक्शन जो है वो जो कलेक्शन प्रोसेस है वो 4 फॉर्म्स के तहत आपको बताया गया है, फॉर्म 1 टू अल्फा टू ब्राउट टू चार्ली। तो ये जो है ये डिटेल में अभी बालाजी आपको लाइव लेके जब आपको समझाएंगे। टोटल सारे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इस पर रजिस्टर्ड है। आज जो हम बैठे हैं आपके साथ पंजाब, आपके सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास रजिस्टर्ड है। टोटल 740 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के जितने हैं उसमें से 717 डिस्ट्रिक्ट इसमें हमारे रजिस्टर्ड है। 36 कैटेगरी में 289 आइटम्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कैसे आइटम सिलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे इस पोर्टल में डालने के लिए। एज ऑन डेट जो पंजाब स्टेट जब हम आज बैठे हैं तो हमारा ये स्टेटस है। अब किसी को पिन पॉइंट मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं अपना अपना स्टेटस इसमें। पूरे 21 डिस्ट्रिक्ट्स का डेटाबेस इसमें आपके लिए सामने मैंने दिखाया हुआ है, ताकि हम समझें कि हम किस स्टेज पे, किस लेवल पे हम आज बैठे हैं। ये जो रिपोर्ट है जो हम मैं आपको अभी कंपाइल करके दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट जो है आपके चीफ कमिश्नर्स को और डिस्ट्रिक्ट में जितने रिलीफ कमिश्नर्स हैं उनको ये रिपोर्ट यहाँ पे भेजा जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये जो है हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनको ये जो है रिपोर्ट्स जो है पुटअप की जाती हैं हर महीने, और ये जरूर ये रिपोर्ट दिखी जाती है और इनका यहाँ पे गहन जो है मतलब एक मतलब डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है इन रिपोर्ट्स का कि भी किस लेवल पे हम लोग आज की डेट में आईडीआरएन पोर्टल पे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता डिजास्टर कब हमें हिट करे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं फर्स्ट अमृतसर, कोई भी एंट्री नहीं है आज तक, लास्ट 1 ईयर की है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो हमने दिया हुआ है ये लास्ट 1 मंथ की आपकी एंट्रीज है। ऐसे ही हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट या भटिंडा या बरनाला, उन्होंने अपनी अपनी एंट्री की हुई है। पीएसयूज की भी भटिंडा में एंट्री हो रखी है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं किसी शहर में या किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई शुगर मिल है, शुगर मिल के पास आप देखेंगे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, लैडर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे सामान पार्ट हो रहे हैं इस लिस्ट में। 298 आइटम्स में ये आइटम्स हैं। सो हमें इन प्राइवेट एंटिटीज को भी अभी हमें इसके अंदर लेना है, उनका सामान हमें इसमें लिस्ट आउट करना है, क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे नियरेस्ट जो भी होगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो मिलिट्री की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, पुलिस हो या कोई भी हो, जिनके पास इस टाइप के सामान है जो कि हमने लिस्ट आउट किए हैं, वो सामान जो है इसमें लिस्ट आउट होने चाहिए। सो आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है थ्रू दिस प्रोग्राम कि ये लिस्ट को अपडेट कीजिए। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और कई डिस्ट्रिक्ट्स नहीं कर रहे हैं, आपके सामने आपके फिगर्स हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप करें। ये जो आज का सेमिनार जो हमने प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम का भी मैं जो है अपडेट आपके डिस्ट्रिक्ट्स में भेजूंगा। आपके डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर्स जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और चीफ कमिश्नर्स को। सो आप अपना स्टेटस जो है वो देख लीजिए कि क्या है और कैसे आपने इसको करना है, वो हम आज आपको सिखाएंगे। सो मैं चाहूँगा कि आप जो है आगे इस पे बढ़ें। तरन तारन कर सकता है, मुक्तसर कर सकता है, लेकिन और जितने भी हैं वो ब्लैंक एंट्रीज हैं। आप देखिए प्लीज, आप एंट्री कीजिए। डिजास्टर्स के टाइम पे कोई ये नहीं देखता कि ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है और ये तरन तारन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये हमारा लास्ट, जब हमने अब जब से हम लोगों ने यहाँ पे ये डिजास्टर मैनेजमेंट का में जो एनआईडीएम का आईडीआरएन पोर्टल को हमने अपडेट किया, उसके बाद आप देखिए एंट्रीज 2020 में एकदम शॉर्ट अप हुई हैं। और जो ये आप सबका जो है, जो आप लोग बैठे हैं, इन सब का एक एफर्ट है जो कि ये दिख रहा है 2020 में, जो एक ग्राफ हमने इतना चढ़ाया है आज की डेट में। तो ये अप टू सितंबर 11 का 11 सितंबर तक का हमने डेटाबेस दिया है आपको। 76,390 एंट्रीज हैव बीन मेड।
सो आप देख सकते हैं कि 2019, 18, 17 सबसे बढ़ के हमने 2020 में हम पहुंच चुके हैं, जबकि अभी हम अक्टूबर में ही एंटर हुए हैं। तो पंजाब स्टेट के भी जो भी आप अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपना डाटाबेस इसमें एंटर कीजिए। ये हमें ये मैंडेट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हर स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेटेड है कि आप इसमें डाटा एंटर करें। एक एपीआई हमने डेवलप किया है जो कि आप हमारा डेटाबेस यूज कर सकते हैं, और जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि अपना केरला स्टेट है, उड़ीसा स्टेट है, बिहार स्टेट है, क्योंकि वो लोग डिजास्टर प्रोन ज़्यादा है और ज़्यादा प्रोएक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट के उसमें, तो उन्होंने जो है अपने हमसे डाटाबेस हमारा शेयर करते हैं हम उनसे, और उन लोगों ने अपना इन्वेंट्री का मैनेजमेंट का अपना सिस्टम बना रखा है स्टेट्स ने, कि इन केस ऑफ डिजास्टर हम जो है डाटाबेस इससे डायरेक्ट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी इसमें कई और नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अभी आपको सिर्फ ये पता चलता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिपार्टमेंट में क्या पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको जियो लोकेशन टैगिंग भी करेंगे। हम इसमें उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं। एक शेल्फ लाइफ हम लगाएंगे जिसमें कि आपको ऑटोमेटिक ब्लिंकिंग हो जाए आपको, कि जिस टाइम आप आपका जब इन्वेंट्री का जब शेल्फ लाइफ खत्म हो जाए, लाइक इन केस ऑफ अगर मैं देखता हूँ टिपर ट्रक, जैसे कि वो ट्रक होता है, उसकी अगर शेल्फ लाइफ 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, अगर वो 10 साल हो जाती है तो आपके सिस्टम में वो ब्लिंक होगा कि आप इसको अपडेट कीजिए, इस टिपर को, इस ट्रक को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नई चीज़ें और हमारे पास आ रही है, और ये नई चीज़ें कहीं और से नहीं आई, ये आपसे ही आई हैं। हमें ड्यूरिंग दी प्रीवियस जितने भी हमारी मीटिंग हुई, 18 स्टेट्स के साथ हम पहले बैठ चुके हैं, और ऐसी ही हम उनसे कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग दे चुके हैं उनको, और सारे के सारे स्टेट्स का रिस्पॉन्स जो है इसमें बहुत ही उत्साहजनक और बहुत एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स रहा है। और उन स्टेट्स का जिन जिनको हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनका डेटाबेस अब एंटर होने लगा है, और उनके अभी आप फिगर आपने खुद ही देखा कि हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, आपके स्टेट में भी मॉनिटर हो रहा है, ये जो भी स्टेटस है इसका। सो कृपया करके आप जो है इसको सीखिए, समझिए और एंट्री करना शुरू कीजिए। ये नया डैशबोर्ड है जिसपे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जून 2020 में हमने इन हाउस डेवलप किया है। ये एनआईडीएम ने इन हाउस इसका डेवलपमेंट किया है, और जो पिछला पुराना डेटाबेस था 2008 से लेकर आज तक का, वो पूरा का पूरा इसमें हम माइग्रेट कर चुके हैं इस वाले सिस्टम में। सो अभी बालाजी आपको लाइव लेके जाएंगे और इसमें बताएंगे। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि बालाजी ने बताया कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर दोनों ही फौज से हैं। दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, 24 घंटे हम अवेलेबल हैं। आपके फ़ोन कॉल्स आप कर सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं, हम आपको विदिन 24 आवर्स हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे प्रोएक्टिव है। तो मैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हम यहाँ बैठे हैं आज, मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपने प्रोएक्टिवली इस पे डाटाबेस एंटर करें। आगे आगे की प्रक्रिया के लिए मैं बालाजी को हैंड ओवर करता हूँ। बालाजी, प्लीज टेक चार्ज। Yes, yes. Thanks for your wonderful presentation, Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasis, sir. Before starting the live demonstration, I would like to say a few words. Lieutenant Colonel Dinesh Chandra Vasis is the in charge of this IDN portal Pan India. So we'll go for the live now. I request to all the district officials before starting this, before going to the live demonstration on the portal, I request to all, please kindly make sure whether your mic has been muted or not. So during the webinar, if there is any internet disconnectivity from your end, is there any problem for continuing this webinar or watching this webinar? You may please see in your chat box. There will be one YouTube link I have placed. I have pasted. That is, so this program is telecasted on NIDM YouTube channel. So you may please watch through YouTube as well. There is no issue for this webinar for continuing watching this webinar. Dharmendra, okay. हेलो नमस्कार, मैं धर्मेंद्र यादव, आईडीआरएन एडमिनिस्ट्रेटर। So I would like to invite my colleague Mr. Dharmendra Yadav will give you the online live demonstration for this IDRN portal in Hindi. मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री कैसे करनी है, डेटा को कैसे अपडेट करना है, कैसे इंसर्ट करना है।
इसमें, ठीक है। अभी स्टार्ट करो। ये हमारा होम पेज है। यहाँ पर हमने ना सब मेनू बना रखे हैं। इसमें होम पेज है, अबाउट, IDRN, रिसोर्स इन्वेंट्री, आइटम डिटेल्स, यूजर मैनुअल, लॉगिन और कॉन्टेक्ट अस। तो फर्स्ट ये 36 स्टेट्स की लिस्ट है हमारे पास में, जो हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा करो। ये हमारे पास 36 स्टेट की लिस्ट है, जिसमें हमने ऑलरेडी सारे स्टेट जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 717 उनकी लिस्ट है हमारे पास में। और जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है उनको हमने रेड कलर में शो कर रखा है। ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो मेंबर कमेटी जो है NDMA और NITM ने जो रिकमेंड किया है कि 289 आइटम्स हैं। इस बॉक्स में हमने डेटा स्टेटस रिपोर्ट्स लगा रखी हैं, जहां पर हम जो है ना प्रत्येक मंथ की रिपोर्ट्स को जो है अपडेट करते हैं। ये हमारा कंट्री वाइड क्वेरी पेज है, जिसके द्वारा कि कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है आइटम को सर्च कर सकता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा अंडमान का। तो ये हमारा सर्च करने का प्रोसीजर है कि कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट डेटा को मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका एड्रेस कैसे निकालना है। तो ये कंट्री वाइड क्वेरी पेज के थ्रू जो है वो डेटा को, आइटम को सर्च कर सकता है। अगर कहीं भी किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई डिजास्टर होता है, जैसे मैं पंजाब को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे हमने जो पेज बनाया है इसके अंदर जो फैसिलिटी दे रखी है, आप ना सारे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डेटा देख सकते हैं। जैसे बठिंडा का ये हमारे पर आइटम है। आइटम को हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मेडिकल सप्लाईज। या आप जो है सारे आइटम, सारे जो कैटेगरी है उसको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 बाई 1 करके आप जो है इनका संबंधित आइटम्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने सर्च क्राइटेरिया में, अगर आप किसी विशेष आइटम को टाइप करके सर्च करना चाहते हैं तो वो आइटम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैं गैस कर सकता हूँ, उसके बाद फाइंड रिजल्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये पंजाब की लिस्ट आ गई बठिंडा की। पूरा का पूरा जो है आइटम का डिस्क्रिप्शन है, आइटम की लोकेशन क्या है, सोर्स उसका क्या है। और ये लास्ट अपडेशन, इस आइटम को, गैस कटर को लास्ट 20 जुलाई 2019 को जो है अपडेट किया था। उसके बाद में इसको अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पर अपडेशन रिक्वायर्ड जो है वो इसलिए लगा रखा है कि हमने ना पर लगा रखा है कि अगर आपका आइटम जो है ना 1 साल से अपडेट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ से सीधे जो है डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर जो आइटम को अपडेट करना है। और ये आइटम का डिपार्टमेंट कौन सा है, ये उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन की डिटेल, कॉन्टेक्ट पर्सन का ईमेल एड्रेस, इससे आइटम को सर्च करने में आसानी हो सके, इसलिए उसका आइटम का डिपार्टमेंट नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का ईमेल एड्रेस। ये IDRN के बारे में है, जैसा कि सर ने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि ये IDRN वर्क कैसे करता है। ये रिसोर्स इन्वेंटरी पर्टिकुलर पेज बनाया गया है जिससे जो है ना सीधे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट जो है कंट्री वाइड क्वेरी पेज पे जाकर के सीधे जो है डेटा को जो है फाइंड कर सकते हैं। और
जैसे ये पंजाब ऑल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, उन सारे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट का जो है रिकॉर्ड्स है, कहाँ पर कौन सा आइटम है, उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, किस डेट को ये लास्ट अपडेट किया गया था, किससे कांटेक्ट करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ये आइटम डिटेल्स है, जिसके बारे में मैं पहले ही जो है डैशबोर्ड पर डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि कोई भी आइटम जो हमारी लिस्ट में है वो आप यहाँ पे उसे सर्च भी कर सकते हैं, और जो है अगर लिस्ट के अंदर आइटम नहीं है और आपके पास वो आइटम अवेलेबल है तो आप उसके लिए हमें मेल भी कर सकते हैं कि ये आइटम जो है लिस्ट के अंदर नहीं है, तो हमारी जो कमेटी है उस आइटम को आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद ही हम उस आइटम को जो है लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल्स में यहाँ पे हमने आईडीआर वर्क कैसे करता है और उसके फॉर्म 2A, फॉर्म ए और नंबर ऑफ आइटम्स की लिस्ट लगा रखी है, जो ऐसे आप डाउनलोड करके लाइन डिपार्टमेंट को जो है भेज सकते हैं जो डेटा एंट्री करते हैं। दूसरा है डेटा कलेक्शन फॉर्मेट। डेटा कलेक्शन फॉर्मेट को हमने 4 फॉर्म्स में डिवाइड कर रखा है। पहला फॉर्म है फॉर्म 1। फॉर्म 1 में हम उस डिपार्टमेंट एजेंसी की डिटेल्स को फिल करवाते हैं कि डिपार्टमेंट एजेंसी का नेम क्या है, डिपार्टमेंट एजेंसी का एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन क्या है, उसका टेलीफोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी क्या है, और जो डिपार्टमेंट एजेंसी है उसका सोर्स क्या है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है या प्राइवेट सेक्टर से करता है या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता है। सेकेंड फॉर्म 2A फॉर्म। 2A फॉर्म में हम आइटम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि इसमें आइटम को कैसे कलेक्ट करना है, आइटम का कोड क्या है, आइटम का नेम क्या है, आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन, आइटम की कितनी क्वांटिटी है और उसकी अवेलेबिलिटी कब से कब तक है, उसको ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसे ऑपरेट करने के लिए कोई ऑपरेटर प्रोवाइडर है या नहीं है। ये सारी चीज हम 2A फॉर्म में भरवाते हैं। 2A और 2B और 2C फॉर्म जो है सेम ही है, बस इसमें ना हमने डिफरेंट कर रखा है कि 2A फॉर्म इक्विपमेंट के लिए है और 2B फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स के लिए है और 2C फॉर्म जो है वो क्रिटिकल सप्लाई मेडिकल सप्लाईज के लिए है। बस इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्म के अंदर, बाकी फॉर्म 2A 2B 2C सेम ही फॉर्म है, बस इनको हमने कैटेगराइज कर रखा है कि ये फॉर्म जो है स्पेशली क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज के लिए है और ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, और 2A फॉर्म जो है इक्विपमेंट्स के लिए है। ये लॉगिन है जिसके यूजर आईडी और पासवर्ड हमने जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, इसी के द्वारा हम यूजर आईडी और पासवर्ड जो हमने प्रोवाइड किए हैं उसके द्वारा लॉगिन करते हैं, और लॉगिन के द्वारा डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डेटा को अपडेट करना है, कैसे डेटा अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको डिलीट करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे मैं अपना एक डमी हियर बना रखा है उसके द्वारा आपको दिखाऊंगा। ये डैशबोर्ड है। लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड पेज आएगा। इस डैशबोर्ड पेज में सबसे पहले डीएमडीसी डिटेल्स है। डीएमडीसी डिटेल्स मैंडेटरी है। इसमें जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो उनके ट्रांसफर होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उनकी सबसे पहले ना जैसे ही उनके ट्रांसफर वगैरह होते हैं तो सबसे पहले उनकी डिटेल्स को अपडेट करना मैंडेटरी है। उसके बाद उनके डिजास्टर से रिलेटेड जो नोडल पर्सन्स हैं उनका नेम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस मैंडेटरी है यहाँ पे फिल करना, जिससे हम लोग उन लोगों से आसानी से कांटेक्ट कर सकें। ये आइटम कोड है, जिससे डेटा एंट्री करने में आसानी हो, उसके लिए हमने यहाँ पे ये आइटम कोड और उनके नेम दे रखे हैं। कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो डेटा को एंटर करेगा तो उसको यहाँ से डेटा फाइंड करने में, सर्च करने में आसानी हो, या उससे अगर ना नहीं पता है तो वो यहाँ से कॉपी कर सकता है डेटा का, आइटम का नेम और उसका
कोड नंबर। ये डेटा स्टेटस पेज है। शायद ये वर्क नहीं कर रहा है अभी क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये यूजर मैनुअल है जिसके बारे में मैंने आपको अभी पहले बताया था। इसमें वेबसाइट में अभी भी कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। ये सारे जो 4 बॉक्स हैं ये हमने रिमूव करने हैं। यहाँ पे जो है जल्दी से ही ये ट्रेनिंग वीडियो है, डेटा कलेक्शन फॉर्मेट है और नोटिफिकेशन आ जाएंगे जिसके द्वारा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपने डेटा कब इंसर्ट किया था और आपने डीएम डिटेल्स कब इंसर्ट की थी। अगर वो डीएम डिटेल्स आफ्टर 6 मंथ के बाद अपडेट नहीं की है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा और डेटा का जो सेल्फ लाइव है आइटम का उसके रिगार्डिंग आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और जो कॉन्टेक्ट पर्सन है डिपार्टमेंट एजेंसी के, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर अगर कुछ भी जो है फिल नहीं है या कोई फील्ड छूट गया है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास मैसेज आएगा। ये डिस्ट्रिक्ट डेटाबेस रिपोर्ट है। इसमें ना जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसने जो डेटा अपडेट किया है, रिकॉर्ड को अपडेट किया है, उसका टोटल कितने रिकॉर्ड अपलोड किए हैं और नंबर ऑफ आइटम किसने आइडेंटिफाई किए हैं। मतलब डेटा रिकॉर्ड ऑफ अपलोड का मतलब है कि उसने कितनी एंट्री की है और नंबर ऑफ आइटम आइडेंटिफाई का मतलब है कि उसने एक आइटम को कितनी बार एंटर किया है। जैसे गैस कटर है तो गैस कटर उसने 10 टाइम्स जो है इंसर्ट किया है तो हमने यहाँ पे उसको सिर्फ एक ही काउंट कर रखा है। उसने एक आइटम को 10 टाइम्स जो है इंसर्ट किया है और इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आइटम को पर्टिकुलरली जो आइडेंटिफाई कर रखा है। सेकंड मेन्यू में है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मॉड्यूल है, इसी के थ्रू जो है हम डेटा को इंसर्ट और अपडेट करते हैं। तो फर्स्ट ऐड रिकॉर्ड में क्या होता है कि ये जो फॉर्म हमने दिखाया था यहाँ पर आपको, ये फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 हमने यहाँ पे बना रखा है। ये हमारे लाइन डिपार्टमेंट है जो डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, उनके लिए फॉर्म है। हार्ड कॉपी इसकी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, वेबसाइट से, और लाइन डिपार्टमेंट इस एंट्री को जो है फिल करके लाते हैं संबंधित एजेंसी, संबंधित डिपार्टमेंट से, और वो जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लेके आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है उस एंट्री को आइडिया पोर्टल पे अपडेट करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे इंसर्ट करना है डेटा। सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे पंजाब है तो पंजाब में कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई प्राइवेट एजेंसी हो सकती है। इसमें प्राइवेट एजेंसी डिपार्टमेंट का नेम मैंने यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली दे दिया है, पंजाब प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का नेम, और ये उसका एड्रेस है। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, कॉन्टेक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट पर्सन का एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन का टेलीफोन नंबर, बाकी के कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर 2, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर 3, फैक्स नंबर, ये नॉन मैंडेटरी फील्ड है।
लेकिन कॉन्टेक्ट पर्सन की ईमेल आईडी, उसका कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर 1, कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर मैंडेटरी फील्ड है। अब उसके बाद में आते हैं हम जो डिपार्टमेंट है उसका एंट्री सोर्स क्या है। बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो बार बार ही गलतियां करते हैं उसके बाद में कि जो है हमने सारे के सारे जो है ना गवर्नमेंट चूज करते हैं, जबकि जो डिपार्टमेंट है वो आपका डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, कोई प्राइवेट सेक्टर है या कोई पब्लिक सेक्टर है। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो आपको यहाँ पे सिर्फ ना प्राइवेट ही फिल करना है, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट करना है, इससे जो है डेटा को आसानी हो फाइंड करने में। ये हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, जो लाइन डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फिल करके लाए थे डेटा एंट्री ऑपरेटर हार्ड कॉपी के द्वारा, उसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है कि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट एजेंसी की सारी डिटेल फिल कर दी कि किससे हमें कांटेक्ट करना है उस आइटम के लिए। उसके बाद में हम उस आइटम को फिल करते हैं कि उस जो आइटम लेके आया है वो आइटम क्या है। जैसे सीटी स्कैन लेके आया है वो, तो सीटी स्कैन नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है सीटी स्कैन की, फिर आइटम लोकेशन, उस आइटम की प्रॉपर लोकेशन को यहाँ पर फिल करना है जिससे उस आइटम को फाइंड करने में आसानी हो। बहुत सारे ऑपरेटर जो हैं वो शॉर्ट में कुछ भी आइटम की लोकेशन को फिल कर देते हैं, जिससे उस आइटम को जो है सर्च करने में ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उसका सही से एड्रेस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आइटम की लोकेशन को जो है प्रॉपर फिल करना है। When sir? Will do sir. I'll go. Link na अभी by 1 PM. Will send na. When will they send? just Parallel you can. ये उस आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे सीटी स्कैन है तो सीटी स्कैन किस टाइप का है उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये यहाँ पर आइटम जो है ऐड हो गया। अब क्या है कि आपको बार बार डिपार्टमेंट और एजेंसी की डिटेल को फिल नहीं करना है, अब सिर्फ आपको आइटम की डिटेल्स को ही फिल करना है। अगर उस डिपार्टमेंट एजेंसी के अंदर और भी सारे आइटम हैं तो सिर्फ वहां से जो है आइटम को ही फिल करना है। जैसे मैं गैस कटर फिल करता हूँ, अब गैस कटर के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। गैस कटर किस टाइप का है, मैंने यहाँ पर दो आइटम को एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है अपडेट कर दिया। अब उसके बाद में ये यहाँ से आइटम को मॉडिफाई रिकॉर्ड में जाकर के आइटम को देखना है या उस आइटम को दोबारा से अपडेट करना है या उसकी क्वांटिटी कम हुई है या वो आइटम जो है अवेलेबल नहीं है। तो ये जैसे ही आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम पे ऐड रिकॉर्ड, तो ये ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पर आइटम डिपार्टमेंट का नेम शो होने लगेगा। पंजाब प्राइवेट लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया था। ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, अगर हम इस डिपार्टमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी ये डिपार्टमेंट जो है डिलीट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर दो आइटम्स को जो है अपडेट किया है, इसलिए ये डिपार्टमेंट डिलीट नहीं होगा। फर्स्ट उन आइटम्स को रिमूव कीजिए, उसके बाद ही ये डिपार्टमेंट जो है डिलीट होगा। ये लिस्ट है, जब ये हमने दो आइटम्स को जो है इंसर्ट किया है तो उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। रिकॉर्ड नंबर क्या है आइटम्स का,
आइटम का आइटम नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका एंट्री सोर्स क्या है और किस डेट को हमने अपडेट किया है। अगर हम जैसे आज हमने इस आइटम को जो है अपडेट किया है, आज इंसर्ट किया है और ये आइटम जो है आफ्टर 2 डे 3 डे या 15 डे या 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ के बाद में अगर ये आइटम की क्वांटिटी कम हो जाती है या आइटम अवेलेबल नहीं है, तो इस आइटम को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर के। प्रीवियस जो हमारा पोर्टल था उसमें ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी। वहाँ पर क्या होता था कि अगर आपने एक बार एंट्री कर दी तो आपको सबसे पहले उसमें हर बार एंट्री करनी पड़ती थी कि डिपार्टमेंट का नेम, कंसर्न पर्सन का नेम, उसकी डेजिग्नेशन बार बार और सारी चीज फिल करनी पड़ती थी आपको। और यहाँ पर सिर्फ ना आपको आइटम को ही मॉडिफाई करना है, जो चीज है मतलब उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हुई है तो क्वांटिटी को करना है, अगर उसकी लोकेशन चेंज हुई है तो लोकेशन को अपडेट करना है। मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने इसकी लोकेशन चेंज, क्वांटिटी चेंज कर दी 10, तो ये अपडेट हो गया कि आइटम रिड्यूस हो गया और उसकी क्वांटिटी कम हुई या इसकी लोकेशन चेंज हुई या ये आइटम जो है अवेलेबल नहीं है उस संबंधित डिपार्टमेंट से, तो इस आइटम को आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया आइटम जो अवेलेबल नहीं है। एक आइटम ऐड करो, यहाँ से इस लिस्ट से आप डायरेक्ट आइटम ऐड आइटम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से आफ्टर 1 डे या 3 डे या 4 डे डिपार्टमेंट एजेंसी क्रिएट करने के बाद में आप के पास कोई नया आइटम परचेज किया है उस संबंधित डिपार्टमेंट ने या मॉडिफाई हो गया है या उसका मेंटेनेंस होकर के आया है, तो वो दोबारा से जो है उस आइटम को यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट एजेंसी की डिटेल्स को जो है फिल नहीं करना है, सिर्फ उस आइटम को ही फिल करना है। जैसे मैं यहाँ से कोल्ड कटर को इंसर्ट करता हूँ, कोई भी डिस्क्रिप्शन जो आइटम से रिलेटेड हो, तो ये मैंने आइटम दोबारा से सेव कर दिया विदाउट डिपार्टमेंट एजेंसी का नाम जो है मॉडिफाई या चेंज किए, सिर्फ आइटम को ही अपडेट करना है, उस डिपार्टमेंट और एजेंसी को नहीं करना है। अगर उस डिपार्टमेंट और एजेंसी की कोई डिटेल्स जैसे उसका एड्रेस या उसका मोबाइल नंबर या उसके कॉन्टेक्ट पर्सन की कोई डिटेल्स चेंज हुई है तो उसको भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट पर्सन आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ या 1 ईयर के बाद जो है कॉन्टेक्ट पर्सन जो है चेंज हो जाता है, उसका कहीं ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ से आप उसकी डिटेल चेंज कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर ऑफिस का नंबर सेम है तो ऑफिस का नंबर भी चेंज कर सकते हैं, सेम है तो नहीं कर सकते। अगर उसका डिपार्टमेंट या सोर्स चेंज हुआ है तो उसको भी आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी को आप चेंज कर सकते हैं। ये उसकी डिपार्टमेंट एजेंसी की डिटेल्स जो है मॉडिफाई हुई। तो इस तरह से जो है डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, इन्वेंट्री कैसे इंसर्ट करनी है, कैसे अपडेट करनी है, कैसे अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे उसको डिलीट करना है, वो सब ये ऐड टू इन्वेंट्री मॉड्यूल के द्वारा किया जाता है। इसकी फिर हम ना रिपोर्ट्स निकालते हैं कि 1 मंथ मंथली, अभी तो मंथली वाइज रिपोर्ट चलती है हमारी कि मंथली वाइज इस मंथ में किस डिस्ट्रिक्ट ने कितना डेटा जो है अपडेट किया है। ये हमारा रिपोर्ट्स हैं, यहाँ से हमने रिपोर्ट बना रखी है कि डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, डेट वाइज रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट। ये डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट है, यहाँ से जाकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकता है कि उसने कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं इस मंथ में। जैसे मैंने आज अभी 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, 3 किए थे, एक मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। ये डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट है, संबंधित डिपार्टमेंट को सर्च करके अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकती है। ये डेट वाइज रिपोर्ट है। इस डेट वाइज रिपोर्ट में आप
फ्रॉम डेट से टू डेट तक, चाहे 4 इयर्स, यहाँ पर 4 इयर्स तक का डेटा पड़ा हुआ है, चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डेटा जो इंसर्ट किया है, अभी मैंने ना 3 एंट्री की थी, जिसमें से एक एंट्री मैंने डिलीट कर दी और 2 एंट्री अभी की है, गैस कटर, कोल्ड कटर और सीटी स्कैन की, और गैस कटर मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो उसके डिपार्टमेंट का नेम, उसके कॉन्टेक्ट पर्सन का एड्रेस, उसके टेलीफोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी और आइटम की क्वांटिटी, उसकी लोकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे किसी भी आइटम को आसानी से जो है सर्च किया जा सके। तो इसलिए जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो मोस्टली यही प्रॉब्लम गलती करते हैं कि कहीं भी मतलब आइटम की लोकेशन को गलत डाल देंगे या उसको शॉर्ट में लिख देंगे। तो मोस्टली जब डेटा एंट्री करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम जो आइटम या डिपार्टमेंट एजेंसी का नाम एंटर कर रहे हैं तो उसका नाम प्रॉपर होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है प्रॉपर होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और कंसर्न पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी जो है प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे आइटम को आसानी से जो है सर्च किया जा सके। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोड है, ये आपके स्टेट की जितने भी स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबका डेटा है। जैसे हमारा ये हमने डमी यूजर बना रखा है जिसमें दिल्ली के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका डेटा है। फोर्थ मेन्यू में हमने 100 आइटम डिटेल्स दिखा रखा है, जिससे जो है किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर को डेटा एंटर करने में प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ से डायरेक्टली जो है उस आइटम का जो लाइन डिपार्टमेंट कलेक्ट करके लेके आए हैं आइटम्स को, तो यहाँ पे सर्च करके आसानी से, जैसे मैं सीटी स्कैन सर्च कर रहा हूँ, Thank you so much, sir. A lot of appreciation there on platforms and hand over the session to Betty sir. Sorry, Betty sir, for taking time out from this session. So now you can ask your questions and then conclude the session and then we can start. Sorry once again. यहाँ से उस आइटम को, उसका कोड और आइटम का नेम कॉपी करके डायरेक्टली और उस आइटम को जो है सेव करना है किसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर को, तो अगर लिस्ट के अंदर नहीं है तो वो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके उसको सेव कर सकता है। ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज है, यहाँ पर कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर जो इस साइट को, इस पोर्टल को ऑपरेट कर रहा है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम है आइटम से रिलेटेड या कोई भी इक्विपमेंट है जो हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है और उसके पास में जो अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें यहाँ से डायरेक्टली मेल कर सकता है। यहाँ से आफ्टर यूज द पोर्टल लॉग आउट करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारी जो साइट है वो 2 बार हैक हो चुकी है, एक बार चाइना के द्वारा और दूसरी यूके के द्वारा। इसके लिए जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो भी साइट को यूज कर रहा है, तो वो आफ्टर जो है लॉगिन करने के बाद में इसको लॉग आउट करने का ध्यान रखिए। ओके बालाजी। Thank you so much for your wonderful live demonstration, Mr. Dharmender Yadav, who is my colleague, who is working in National Institute of Disaster Management. Now the time to discuss whatever the concern queries or any complaint regarding any doubt or any suggestion, feedback from the state of government of Punjab, who are attending this webinar from the district level and state level. I request to all, please kindly unmute your mic. So whatever your suggestion and feedback, is there any doubt and clarification or any complaint, please kindly register with us. Definitely we will be responsible for all of your questions. It's a general reminder for all the district officials
I request to all, please kindly unmute your mic. If there is any doubt, any suggestion, feedback regarding this new IDRN portal, so please kindly register with us. Definitely, we will be giving the clarification. We will be take on high priority your suggestion feedback in this new IDRN Hello. portal. Yes, I'm may I know your name and your District district? Revenue Officer Pathankot. Very useful information, and we will compile Yes, data. And you have. yes, yes. Okay, Thank you very much, brother. okay, okay. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. So already we have completed 18 states, UTs of India, pan India. We have covered. So this is the 19th. This is the 19th state. So I request to all the district officials, please. I request to all the district officials, please kindly unmute your mic. If there is any doubt or any clarification, is there any suggestion or feedback or complaint, you can please register with us. The reason behind of this particular online training program of India Disaster Resource Network, the focusing of the state-wise, we want to get valuable feedback and suggestion or any clarification from each and every district of the pan India. Okay, I'll call one by one district wise. If there is any district officials from the Punjab state, I request to please kindly unmute your mic. Whatever your suggestion, whatever you may feel comfortable, it's not any debate or like we are not taking anything on bad manner. So we will be responsible for all of your questions and suggestion feedback. We will take on high priority. So I request to district official Amritsar district. Is there anyone from Amritsar district? Amritsar district. Amritsar district. Kindly please unmute your mic from your end. Is anyone from Amritsar district? Amritsar. Okay. Is anyone from Parnala district? Parnala district? Parnala district. Is anyone official from Parnala district? Okay. Is anyone from Faridkot district? Is anyone a district official from Faridkot? हाजिर है Please जी kind- परमजीत सिंह तहसीलदार फरीदकोट Yes, sir. Tell me, sir. परमजीत सिंह बराड़ तहसीलदार फरीदकोट जी तहसीलदार What, sir? फरीदकोट हेलो सर हेलो हाँ जी सर सर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई कंप्लेंट हो पोर्टल रिगार्डिंग तो आप हमसे हमसे शेयर शेयर कर कर सकते हैं। नहीं सर ठीक है सर ओके सर, थैंक यू सर। Okay, Balaji, we leave it like this only, है ना? I'll try to conclude it. Okay. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. ओके मैं मतलब अभी जब हमने ये आपको दिखा दिया ये पोर्टल के बारे में, एक बहुत छोटा सा पोर्टल है जो कि समझने में मुझे नहीं लगता कोई मेजर परेशानी होनी चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी आपको किसी को लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत आ रही है डाटा एंट्री में या किसी भी चीज में, तो आप वो बता सकते हैं अभी। कोई भी फीडबैक या कुछ भी आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा फीडबैक नहीं है तो मैं अभी इस मीटिंग को मैं यहीं कंक्लूड करने की करता हूं, और हम चाहेंगे कि आपका जो सहयोग है ये हमेशा बना रहे। पंजाब स्टेट से जो है जो एक डाटा एंट्री का जो एक वो होना चाहिए इस पोर्टल पे, वो जो है और ज़्यादा इस पे हम अपना जो डाटा एंटर करें। मैंने आपकी स्टेटस आपको दिखा दी है। श्री सत्येंद्र सिंह जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वेरियस डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें शेयर करें जो स्टेटस है, और उस स्टेटस को हम इम्प्रूव करें।
इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, जो आप लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पे ये जो हमारा वर्चुअल ओरिएंटेशन कैप्सूल था ये अटेंड किया। कोविड-19 की जो सिचुएशन है आज की डेट में, उसके तहत हम बेस्ट ऐसे ही मिल सकते थे। जब ये खुलेगा, अगर आपको चाहिए कि आपके स्टेट में आके, जो पंजाब में आके या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिकली कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम जो है फिजिकली आके भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए मैं इस आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और अभी भी किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम इसको कंक्लूड करते हैं। कोई भी लास्ट कोई है तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो प्लीज बालाजी, वी मे कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम। थैंक यू। Okay, sir. Okay.